नमस्ते टू ऑल जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वानी मनोराज है एंड चेतना की तरफ से आज मैं इस सेशन की मॉडरेटर हूँ। आज के सेशन में हम बच्चों के अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे एंड उनको इम्प्लीमेंट या रियलाइज करने में जो चैलेंजेस होते हैं उसके बारे में भी हम हमारे एस्टीम पैनलिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। बिफोर हम शुरू करें, मैं चेतना के काम को थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। चेतना was founded by Mrs. Pragya Parande, who is currently the member of National Commission for Protection of Child Rights. चेतना 5 वर्टिकल्स के अंदर काम करता है, स्पेशली नेमली हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। इन वर्टिकल्स के अंदर हमारे कई प्रोग्राम हैं जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, उनको अचीव करने में मदद करते हैं। आपको अगर चेतना के बारे में या हमारे काम के बारे में और जानना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम में। यू कैन मेक अ डोनेशन टू चेतना एंड हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है आपके स्क्रीन पे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्पीकर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, एक सेकंड जी, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे who's our chief guest for today. Sir is the member of Rajasthan State Commission for Protection of Child Rights. He is the youngest member to be appointed to the Rajasthan State Commission. He is a doctorate in the field of child protection and child rights with an experience in the field of child rights. Sir, we are honored to have you with us. Thank you for joining us. We also have with us Miss Anvesha Deb. She completed her Bachelor of Laws degree from Meerut University with 9 years experience in law. Presently, she is serving as panel advocate for Union of India and Supreme Court of India. She is associate partner in Lex Locum Consultants LLP. She has also worked as a legal aid counsel for juvenile justice boards. We have with us K. V. Muthu Kumar sir. Sir is an advocate on record and Union of India A panel advocate in the Supreme Court. He is an experienced advocate having around 11 years of experience in constitutional matters. Sir has been associated and involved in legal issues pertaining to women and children and has a vast experience in child rights. Thank you to our panelists for joining us today. जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान, इंडिया भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री कहलाया जाता है। जो हमारे जितने भी लॉज हैं या रूल्स हैं, गवर्नमेंट को इनैक्ट करने की पावर संविधान से ही मिलती है। इसलिए हमारे संविधान को मदर ऑफ ऑल लॉज कहा जाता है। पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स प्रोवाइड करता है। दीज और जो के राइट्स भी इंक्लूडेड है, लेकिन हमारे संविधान के अंदर कुछ राइट्स हैं रिलेटेड, आज उनके बारे में। जो सबसे पहला राइट जो आता है आर्टिकल 14, 15 एंड 17, दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सर, अगर आप हमें बता सकें कि जो ये राइट है ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कैसे ट्रांसलेट किया गया है और कैसे जो हमारे लॉज हैं वो बच्चों को राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। हेलो मुथु सर। जी सर। हाँ, so Article 14, 15 and 17. So the Constitution itself guarantees rights to all citizens. Now the citizens include one of the right that the Constitution itself guarantees is the right to become a citizen of the country. So a child that is born is guaranteed citizenship rights of this country. The moment the child becomes a citizen of the country, the child gets all the rights in the Constitution. Now the child has a right on par with other citizens of the country, as including right to equality, right against discrimination,
right against untouchability and everything. So these are the basic provisions that are in Article 14, 15, and 17. So one of the right that the child has is the right to education. Now, earlier, right to education was not a fundamental right; it was only included as a directive principle in the state policy, as a directive principle. Now, after the amendment, 86 constitutional amendment, right to education is a fundamental right where a child up till the age of 14 years has a right of education. Now, what is the difference between the constitutional amendment? What is the need and purpose to include it as a fundamental right? Is that a fundamental right is something that you can enforce in the court, a constitutional court, that is the High Court or the Supreme Court. So, as a matter of right, a child can approach the court and say, "Look, I want education, and the state has to give me education." That is the basis of the amendment, and that is why education has been given importance. And I think the parliament in its wisdom thought that it has to be a fundamental right. There has to be an amendment so that every child gets education, a basic education. जी That is about it. जी सर। सर आपने सही कहा कि बच्चों को जो है जो अधिकार मिला है राइट टू इक्वालिटी, उसमें जेंडर नहीं देखना चाहिए, एज नहीं देखनी चाहिए, सारे लॉज उन्हें अप्लाई होते हैं। स्पेसिफिकली कुछ लॉज बनाए गए हैं बच्चों के लिए भी, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है उसे। अन्वेषा मैम, जो दूसरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो है राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू असेंबली। अब जो हमने दुनिया में देखा है आज कुछ सालों, जैसे पिछले 2 साल में, कि चाइल्ड लेड एक्टिविज्म काफी बढ़ गया है, जिसमें बच्चे जो हैं अपने राइट्स की ओनरशिप लेते हैं एंड वो अपने अधिकारों का इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक्टिविज्म करते हैं। जैसे हम क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म जो है ग्रेटा थुनबर्ग की, वो हमने देखा है। तो जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली जो है आर्टिकल 19A एंड आर्टिकल 19B के अंदर जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये 2 राइट जो है बच्चों के अधिकारों के लिए एंड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड लेड एक्टिविज्म। मैम मैम आई थिंक जी मैम जी मैम Am I audible? जी मैम Hello. जी मैम क्या मैं audible हूँ? जी मैम। Okay. Thank you. Thank you first of all, Vaniji, for inviting me, and I thank all my fellow speakers also here. Thank you, sir. And okay. Article 19 which you are talking about, Article 19 हमें कहता है कि protection of certain rights regarding to freedom of speech. Okay. Article 19A कहता है कि freedom of speech होना चाहिए, बच्चों को सब कुछ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए. So whatever they can speak out. I mean, whatever they have, they want to say, they can speak out in public. Okay. Then in 19B also, to assemble peaceably and without arms. जी तो ये दोनों तो उनके अधिकारों में हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए। अब ये जो क्लाइमेट चेंज का जो आपने बताया है, वो ग्रेटा थनबर्ग जो लड़की थी, शी वो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने उन्होंने एक साइन उन्होंने लेके शी वाज स्टैंडिंग एंड शी सेड दैट क्लाइमेट के ऊपर मतलब स्कूल्स शुड बी देयर वो पढ़ना बंद कर रहे थे, लाइक पढ़ाई के लिए वो ये कह रहे थे कि नहीं, स्कूल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए सबको, ये गवर्नमेंट को पार्लियामेंट को ये देखना चाहिए कि क्लाइमेट भी इफेक्ट करती है, तो लाइक इसीलिए देन the publicity and widespread began after Swedish school girl did that. Okay, then a global strike on March 15, 2019 gathered more than 1 million strikers and young people. अब उन्होंने अपने साथ क्या किया, एक ग्लोबल हो गया, ये जो प्रोटेस्ट था ये एक ग्लोबल उसमें अरेना में आ गया. देन एवरीबडी केम अलोंग, सब लोग जुड़ते गए उसके साथ. और उसमें अगर ये हम बच्चों के लिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें मैं ये कहूँगी कि बच्चों को
ये देखना चाहिए कि कोई भी प्रोटेस्ट वो करें, लेकिन उनको सबसे पहले ये देखना है कि वो सब कुछ पीसफुली करें, बिकॉज दे आर हैविंग अ राइट, नो डाउट. Constitution is giving them a right, but they should be always conscious, because children are very, some of the children are very vulnerable, because you know, कुछ बच्चे Hello, ma'am. Yeah. I think मैम का कनेक्शन हमारे साथ टूट गया है. जब तक मैम वापस आती हैं तब तक आई विल मूव ऑन विद अदर क्वेश्चंस. जैसे शैलेंद्र सर, जैसे मधु सर ने डिस्कस किया कि राइट टू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड राइट टू एजुकेशन जो है वो आर्टिकल 21A के अंदर प्रोवाइड किया गया है. इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको क्या कहते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए. सर, आपका काफी एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन के फील्ड में. आपने 4000 से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को मेन स्ट्रीम या फॉर्मल एजुकेशन में क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम किया हुआ है. तो सर, आपके एक्सपीरियंस से अगर आप हमें बता सकें कि ये राइट टू एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, एंड उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. बिल्कुल वानी जी, पहले तो आपका पूरा ग्रुप को, चेतना ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर जो अलग अलग वेबिनार्स आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. निश्चित रूप से इससे एक कॉमन लेमैन तक बच्चों के राइट्स को लेकर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो बच्चों के संदर्भ में उसकी एक समझ बनेगी. तो मैं पूरा आपके इंस्टीट्यूट को, आप सभी लोगों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा. देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, जैसा मुथु जी ने भी कहा कि जो 86 जो अमेंडमेंट रहा था हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों को फंडामेंटल राइट के रूप में एक एजुकेशन का राइट दिया गया. अभी देखिए, फंडामेंटल राइट होने के बाद ये एक, और इसमें एक वर्ड काम लिया था, फ्री एंड कंपल्सरी. मतलब फ्री एंड कंपल्सरी हर वो बच्चे के लिए कि जो बच्चा किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो. शायद हो सकता है कि आज हमें जो व्यूअर्स सुन रहे हैं बहुत सारे सक्षम परिवार से होंगे, सभी लोग भी नेट पर हैं, तो वो सभी लोग सोचते होंगे फ्री एंड कंपल्सरी का क्या रिक्वायरमेंट है. लेकिन जो एजुकेशन की जो नीड और जो इंपोर्टेंस थी, वो उन सभी लोगों को ध्यान में रखा गया कि जब इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ तो ये निकल कर आया, जो सभी लोग जानते हैं, जो लोग सुन रहे होंगे व्यूअर्स, कि आज एजुकेशन आपकी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए, डेवलपमेंट के लिए सबको निर्भर करता है. और आज मोर देन कितने हजारों करोड़ों बच्चे हमारे जो ट्राइबल एरियाज में बिलोंग करते हैं, वल्नरेबल सिचुएशन से बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने इस राइट को नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो कैसे राष्ट्र आगे बढ़ेगा. तो इसको वर्ष 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जब आया, उसके बाद इसको फ्री एंड कंपल्सरी एक एजुकेशन के फॉर्म में हर एक बच्चे को जो 6 से 14 साल का है उसको एजुकेशन दिलवाने का बात किया गया. जो आपने बताया कि जिन बच्चों को हमने मेन स्ट्रीमिंग किया है, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट आ जाने के बाद, इसको फंडामेंटल राइट के रूप में बच्चों को एक अधिकार मिलने के बाद, ऐसे कई बच्चे हैं, मतलब आज शायद व्यूअर्स को सुनकर आश्चर्य होगा, आज भी ऐसे गांव हैं, ऐसे हेमलेट्स हैं, ऐसे अपने विलेजेस हैं जहां पर 8-10 किलोमीटर की अप्रोच में स्कूल अवेलेबल नहीं था. तो शायद आप और हम अपने फादर से या अपने गार्जियन से उनसे सुनते होंगे कहानियां कि हम लोग बहुत नदियों से जाते थे, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ते थे. वो सेम सिचुएशन आज है. आज भी ट्राइबल की आप बात करें, हमारे जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी आप बात करें, चाहे दूर दराज के वंचित तबकों की बात करें, आज भी स्कूल की अवेलेबिलिटी की बहुत प्रॉब्लम थी. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट ने क्या किया कि हर 1 किलोमीटर में पीएस मतलब प्राइमरी स्कूल और 2 किलोमीटर में यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल की अवेलेबिलिटी को उनके राइट के रूप में इंट्रोड्यूस किया. तो राइट हो जाने से ये हुआ कि वहां पर स्कूल खुले, जहां पर भी 30 से ज्यादा बच्चों का एनरोलमेंट था या जहां पर 30 बच्चों की अवेलेबिलिटी थी, वहां पर गवर्नमेंट ने स्कूल खोलना शुरुआत किया. और आज मुझे खुशी है कि लगभग उन सभी जगहों पर स्कूल खुल चुके हैं, और जहां पर स्कूल खुलने बाकी है वहां पर भी सरकार नियमित रूप से प्रयास कर रही है. जो भी डिमांड्स पीआरआईस की ओर से, लोकल हमारे इंस्टीट्यूशन की ओर से आती है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर सरकार ध्यान देकर वहां पर स्कूल खुलवा रही है. तो राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद जो एक इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन था, उसके संदर्भ में एक अच्छी एक पहल या कहना चाहिए राष्ट्र में हुई है. अच्छा सर, जैसे आपने कहा ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आया एंड जो अधिकार दिए गए, जिसकी वजह से जहां गांव है वहां पे भी अब स्कूल्स खुले हैं. सर, जो ये कोविड-19 पैंडेमिक जो हुई, जो लॉकडाउन हुआ, इसमें जो एजुकेशन का लैंडस्केप बदल दिया, जहां पे अब ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है. अब राइट टू एजुकेशन जब कहा गया है
तो ऑनलाइन एजुकेशन जो लॉकडाउन है उसमें ये रिवील हुआ कि एक डिजिटल डिवाइड है, जहां रूरल एरियाज में इंटरनेट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, अगर इंटरनेट है तो वो फोन नहीं है या टैबलेट नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर पाए। तो सर इसमें क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए जिसमें ये ऑनलाइन एजुकेशन जो डिजिटल डिवाइड है ये कम हो जाए और राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को मिले, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन ही क्यों ना हो सके? बिल्कुल वानी जी, बहुत एक जरूरी और आवश्यक प्रश्न आपने रखा है। देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कोविड-19 का सिचुएशन हुआ, पहले हमारे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स का ये कहना था, पॉलिटिशियंस का ये कहना था कि अभी तो वैसे भी समर वेकेशंस थे, तो ठीक है बच्चे भी थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऑनलाइन एजुकेशन या उसके थ्रू बच्चों को मिल पाएगा। लेकिन अब चूंकि कोविड-19 से रिलीफ कैसे संभव हो पाएगा, कोरोना से कब हम बाहर निकलेंगे, ये स्थिति आज क्लियर नहीं है। हो सकता है कुछ महीने और भी स्ट्रगल चले। अगर स्ट्रगल चलता है तो एक बच्चे वास्तव में इस शिक्षा से जो पहले प्राप्त कर पा रहे थे उससे वंचित हो रहे हैं। इसको लेकर यदि मैं पूरे राष्ट्र की बात तो नहीं, राजस्थान के संदर्भ में हम लोगों ने जो पहल करी है, राजस्थान बाल आयोग ने जो पहल करी है, वो मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, शायद सभी जगहों के लिए कुछ चीजें वो यूजफुल हो पाए। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सबसे पहले अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर इतनी ग्रीवेंसेज आई हैं कमीशन के पास, और हमारे पास नहीं है, लगभग सभी कमीशन से जब हमने डिस्कशन किया तो उनके पास भी ये ग्रीवेंसेज थी। तो सबसे पहला तो जो एक ये है मिथ कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चे बहुत अच्छा बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं या एक बहुत अच्छा एक विकल्प है, नहीं, ठीक है, एक अल्टरनेट हो सकता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल एजुकेशन के पैरेलल लाकर खड़ा नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी जो प्राइवेट स्कूल्स कर पा रहे हैं, स्पेशली मैं ट्राइबल एरिया की भी बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड पॉइंट ट्राइबल का लूंगा, कि जहां पर भी अभी ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है उसको लेकर एक डिटेल एडवाइजरी राजस्थान स्टेट कमीशन ने जारी किया अभी लास्ट मंथ में, और उस एडवाइजरी में हम लोगों ने बिल्कुल स्पेसिफिक किया कि एक बच्चों का जो एक मेंटल और एक फिजिकल उनके साथ बच्चों के साथ कुछ ऐसे गलत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे सेशंस होने चाहिए, बीच में गैप कितना होना चाहिए, कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को आप इंश्योर करेंगे, और डिटेल एडवाइजरी हम लोगों ने जारी करी है, जिसके थ्रू काफी अच्छे रिजल्ट्स राजस्थान से भी हमें मिल रहे हैं। कई सारे स्कूल से मैंने पर्सनल फॉलोअप भी लेता हूं, तो मालूम चला है कि अब कुछ चीजों में जो पहले चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, वो नहीं हुई। अब सेकंड बात आती है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं है, कि जिनकी बात मैं पहले कह रहा था, जो ट्राइबल दूर दराज क्षेत्र के लोग हैं, तो कैसे यूनिफॉर्म एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग सभी तक इस एजुकेशन की पहुंच को सुनिश्चित कर पाए। तो देखिए, दो विकल्प हैं। आज मैं ये नहीं कहता कि हर घर में मोबाइल है, सबके पास नेट के एक्सेस है और सब लोग नेट से ऑनलाइन पढ़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो राजस्थान में एक शुरुआत करी है, हम लोगों ने दो विकल्प को और अप्रोच किया। वो थे हमारा एक तो रेडियो। आज रेडियो का एक्सेस ट्राइबल से, ट्राइबल बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्र में भी उसका अप्रोच है। तो राजस्थान में एक तो रेडियो और एक टेलीविजन, इनके माध्यम से भी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ सेशंस को प्लान किया और उनके माध्यम से एक पहुंच बना रहे हैं, और एक मॉर्निंग का टाइम फिक्स किया हुआ है, जिसके माध्यम से बच्चे, मैं ये तो नहीं कह रहा बिल्कुल 100% जैसा वो स्कूल में ले रहे थे वैसे एजुकेशन मिल रही है, हाँ, लेकिन जो एक बेसिक एजुकेशन को घर पर मिलनी चाहिए, कुछ असाइनमेंट्स मिलने चाहिए, वो कुछ जानकारियां हम लोग शेयर करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और कुछ चीजें हम लोगों ने इनिशिएट करी भी है। लेकिन एक बात और है जो मुझे लगती है पर्सनली जो होनी चाहिए, अगर राष्ट्र इसको कर पाता है तो एक अच्छी पहल होगी, कि देखिए हम लोगों ने अभी क्या किया कि एजुकेशन में आपके स्कूल्स तो भी क्लोज हैं, लेकिन टीचर्स आ रहे हैं। अगर ये संभव हो पाता है कि जो टीचर्स अभी अपने स्कूल में आ रहे हैं, वो चाहे गांव के स्कूल है चाहे शहरों के स्कूल में, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूं, तो जो टीचर्स अभी इस दौरान अपने यहाँ पर आ रहे हैं, वो कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। उन नोट्स को, उन असाइनमेंट्स को हम लोग, जब कई सारी चीजों में सरकार ने फूड को, न्यूट्रिशंस को, इन सबको डोर टू डोर इंश्योर किया, क्योंकि ये बहुत प्राइमरी था, जरूरी था। तो अब एजुकेशन भी अब उस मोड पर आके 4-5 महीने का गैप आ गया, तो क्यों ना एजुकेशन को लेकर भी कुछ ऐसी पहल की जाए कि डोर टू डोर ऐसे ट्राइबल बच्चों को कुछ चीजें मिल पाए, चाहे उनको असाइनमेंट्स मिले, उनके फॉलोअप्स हो पाए, तो बच्चे एक जगह गैदर भी नहीं होंगे और उनको घर पर एक विजिबल कोई डॉक्यूमेंट मिल पाएगा जिसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक वे फॉरवर्ड में, आगे प्लानिंग में कुछ चीजें हो सकती हैं, बाकी एट प्रेजेंट ये दो विकल्प हैं जो राजस्थान कर रहा है। थैंक यू सो मच सर, आपने आप जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं एजुकेशन में राजस्थान में, एंड आई होप कि ये जो पहल चली है ये बाकी देश में भी फैले, और जो आपने कहा कि नेशनली एक टूल किट बनाई जाए जो एजुकेशन, जिसमें वो ट्राइबल एरिया तक पहुंच पाए, तो वो आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट है। एंड ये जो हमारे साथ जो सोशल एनजीओज जो जुड़े हैं, जो पॉलिसी में काम करते हैं, तो अगर वो भी ये क्या कहते हैं, ये काम अगर ले ले और एक टूल किट प्रिपेयर हो पाए नेशनली, आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अन्वेषा मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वो थोड़ी नेटवर्क की इशू हो गई थी। जी मैम। मैम, हम आपसे बात कर रहे थे आर्टिकल 19 के बारे में, एंड कैसे चाइल्ड लेड एक्टिविज्म जो है उसमें आर्टिकल 19 ए एंड बी का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैम, अगर आप उसके बारे में आप क्या कहते हैं बता सकती हैं। जी मैम। श्योर। मैं जो मैं कह रही थी वहां से मैं शुरू करती हूँ। एक तो द क्लाइमेट चेंज प्रोटेस्ट जो आपने बोला, वो मैं उसके रिगार्डिंग कुछ बताना चाहूंगी। दैट इज द क्लाइमेट चेंज प्रोसेस is a campaign, I would say. Okay, it is a campaign, and it is an attempt to raise voice against global inaction and apathy towards climate change. Okay, and this is led by the children. तो बच्चों ने जो ये प्रयास, जो ये प्रोटेस्ट शुरू किया है सबने एक साथ मिलके ग्रेटा थनबर्ग के कॉल पे, then now the thing is only if we go by the constitution, हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों को अपने राइट्स के बारे में they should be well aware and they should be well conscious, I would say, कि उनको मतलब अगर वो कुछ कर रहे हैं वहाँ पे वो कुछ weapons कुछ ऐसा कुछ यूज ना करें to break the peace of that assembly. अगर वो assemble भी कर रहे हैं, don't break the peace please, and कुछ आर्म्स एम्यूनिशंस ऐसा कुछ वो यूज ना करें अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19B। देन आर्टिकल 19A में भी जो है वो अपनी बात को बिल्कुल रख सकते हैं इन पब्लिक डोमेन, सबके सामने रख सकते हैं, बट देयर शुड बी इट शुड बी वेरी पीसफुल। जब भी वो अपनी बात रखे, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ किसी के दबाव से, किसी के डर से वो अपना कुछ मतलब खुल के ना बोल पाए, खुल के सामने ना आ पाए। सो दिस would be my advice also to the children who are doing this. If you're doing it for a good cause, go ahead, but you should be always aware of your ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि जो राइट्स हैं वो जितना सैक्रोसैंक्ट है, लेकिन वो कंप्लीट राइट्स नहीं है। ये आर्टिकल 19 की जो फ्रीडम है, इन्हें राइट नहीं, इन्हें फ्रीडम कहा गया है क्योंकि इनको रिस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि बच्चे जब अपने राइट्स के बारे में जाने, वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन राइट्स के, उनके बारे में भी जाने। थैंक यू सो मच मैम, ये आपने हमें बताया। मैम, जब हम क्या कहते हैं हम शैलेंद्र सर के साथ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे, एंड हमारे देश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया है। मैम, अगर आप हमें ब्रीफली इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता पाएं, एंड ये कैसे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, अगर ये आप इस पे लाइट शेड कर पाए, विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। देखिए, आई वुड शेयर द हाइलाइट्स। ठीक है, अभी ये जो नया आया है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके हाइलाइट्स पे मैं जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द चेंजेस that people had yearned for in the educational policy for several years, okay, that have been rolled in this new education policy. Okay, education reforms shall be brought to educational reforms shall be brought to build innovative and critical thinking among the youth. Okay, a new global standard is being set up. उसमें शिफ्ट के बारे में भी बोला गया है, like from the shift should be from 10+2 structure to 5+3+3+4 in a step in that direction. This is a step taken in that direction. Just education system को और थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, this initiative has been taken just to reform the educational system so that the children जो पहले से कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करते आए हैं, हो सकता है वो कुछ इतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो, कुछ और चेंजेस कुछ इसमें नहीं हो पाए हो, तो उन चीजों को ढूंढ के उन्होंने एक बहुत अच्छी एक पहल करी है, एक बहुत अच्छा एक प्रयास किया है इसको बनाने में। देन they also talk about boosting of job prospects, okay, in this new policy. The new educational policy will prepare students for the global workforce by teaching them how to think. As Albert Einstein ने बोला था, imagination is greater than knowledge, cause
नॉलेज इज ओनली जो हमारी बुकिश थिंग होती है, तो थियोरिटिकल हम पढ़ते हैं, द इमेजिनेशन इनसर्कल्स द वर्ल्ड। इमेजिनेशन से आप किसी भी एक्सटेंट तक कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। तो लाइक उस पावर को हमारे देश के यूथ में डेवलप करने के लिए ये पहल, ये जो प्रोसेस प्रयास किया गया है, इट्स रियली, I should really appreciate this process. And now हाउ थिंक करने की जो क्षमता है कि सोचो, अपनी सोच को बढ़ाओ, सोच को डेवलप करो, इम्प्रूव करो, that is what is being taught, will be taught in this, as per according to this policy. Then policy proposes using mother tongue. This is very important thing कि अगर हम लोग, कई बार कुछ बच्चों को देखा गया है कि जबरदस्ती हम जो स्कूल में करते थे या हमारे टाइम पे भी हम करते थे, I am Bengali. Okay, at my home I speak in Bengali. But हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमें जबरदस्ती इंग्लिश बोलना पड़ता है सबके साथ. So this should be, ये लगा, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, दे हैव थॉट ऑफ कि इसमें you should always be comfortable in whatever language you are, you understand that whatever language you can express yourself properly and completely. तो इसीलिए मदर टंग को ये प्रपोज किया गया है इस पॉलिसी में कि मदर टंग को ज्यादा एम्फसाइज किया जाए कि आप जिस भाषा में घर पे बात करते हैं उस पे ही आप पढ़ाई करें, एटलीस्ट till class 5, and they also recommended that it should continue till class 8 and beyond also. These were the highlights. जी मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी कंफ्यूजन है क्या कहते हैं सोसाइटी में। तो ये जान के कि क्या कहते हैं बच्चों के लिए जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उनको स्किल ज्यादा सिखाई जा रही हैं सो दैट उनको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सके। एंड ये कोविड लॉकडाउन की वजह से तो हमने देखा ही है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट कितना ही क्या कहते हैं कितना इम्पोर्टेंट एंड कितने सारे लोगों की जॉब्स चली गई। तो ये जो फोकस है ये आई थिंक बच्चों के लिए काफी अच्छा है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल द न्यू जनरेशन ऑफ किड्स जो इस पॉलिसी के अंदर पढ़ाई करेंगे और इनको इस पॉलिसी की क्या कहते हैं मिलेगा। जी 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 अगर जो राइट टू एजुकेशन है ये क्या कहते हैं, जैसे मुथु सर आपने कहा कि ये अमेंडमेंट से लाया गया, लेकिन उससे पहले इसे राइट टू लाइफ के अंदर क्या कहते हैं इंक्लूड किया गया था। तो राइट टू लाइफ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई विल से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर कोर्ट्स उसको एक्सपैंड करके काफी दूसरे जो राइट्स हैं उनको इंक्लूड किया है। तो सर अगर आप हमें बता सके मधु सर की ये जो राइट टू लाइफ है, हाउ डज दिस राइट टू लाइफ, हाउ द कोर्ट्स हैव इवॉल्व्ड दिस राइट टू बेनिफिट द चिल्ड्रन सर? Right. Before that, can I just add on to what the other speakers said on a few other topics? See, firstly, what she spoke about climate change. Now, very important and relevant topic that she has pointed out, and the thing that she highlighted was children should not be use the shield to propagate agenda or a propaganda. One, and secondly, there are other remedies. That is, the legal remedies are available to children. Now, what has happened is there is one case, interesting case, pending before the Supreme Court, where a 4-year-old child filed a writ petition before the Supreme Court directly regarding the pollution, and the Supreme Court has entertained it and has passed certain orders where this was one of the landmarks where the Supreme Court said that crackers should be banned on Diwali and how it should be regulated. That's a different issue as to whether regarding the legalities and everything. But a child has a right to approach the court, that is the National Green Tribunal or the High Court or the Supreme Court. That is enshrined in the Constitution. And second point, as Sir was talking about regarding online education. Online education, the point that was highlighted was very valid, and everybody has a concern as to how rural students would be benefited or how they would be affected. Now, the Karnataka government had actually banned online education. That was challenged before the High Court of Karnataka, and they said that you can permit online education. Probably today we are talking about online education.
10 years ago, if we had spoken about online education, everybody would have rubbished the idea. Probably 10 years ahead, I think online education is the need of the hour, and the great luminaries in educational field can actually give lectures or deliver some talks which will help the rural students. Now, coming back to the topic that we spoke about, Article 21. Quotes, Article 21 is a very, what do you call, is something that has to be expanded by the court. The field or the subject under Article 21 is wide. So the court, every time the court comes with a greater expansion of Article 21. If you read the provision in the Constitution, Article 21 only means no one shall be deprived of life and liberty except in accordance with law. This is the entire text of Article 21. So this text or these words have been interpreted by the courts, that is the Supreme Court and the in a manner which benefits the entire society. And how children have been benefited is one such example is the Bandhuwa Mukti Morcha case, where bonded labor came to be abolished. So and MC Mehta case is also an example of Article 21, where the court took notice of the fact that children were used as labor, especially in hazardous practice like preparing firecrackers in mines and everything. So that brought about an amendment, that brought about a legislation where a legislation was enacted to prevent all these things. So the court has been expanding Article 21 for the benefit of children, for example, in prevention of child labor, prevention of bonded labor, and the right to education, as we just discussed about, since it has been a fundamental right now, Article 21A. Now you can directly approach the court. A child who is deprived of education can directly approach the court and say that, look, please give me education. So that is the benefit that Article 21 gives to the children. जी सर, नाइस। आपने बहुत सही कहा सर, जो आर्टिकल 21 है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बच्चों को बच्चे एंड उनके माँ बाप को, जो पेरेंट्स हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि इस आर्टिकल के अंदर अगर आपका कोई भी वायलेशन होता है तो आर्टिकल 21 के अंदर आप उसे कोर्ट के सामने ला सकते हैं, एंड कोर्ट उस पर अपनी इंक्वायरी शुरू कर सकता है। जो हम नेक्स्ट जो राइट है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अन्वेषा मैम, अगर आप हमें बता सकें कि ये जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये इसके अंदर क्या कहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की गई है, तो अगर आप हमें ब्रीफली समझा सकें जो लीगल फ्रेमवर्क है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में हमारी कंट्री में। आई थिंक मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जब तक हमारे मैम वापस हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक शैलेंद्र सर, जो आपने काफी काम किया हुआ है इन एंटी ट्रैफिकिंग कैंपेन्स एंड एफर्ट्स में, तो अगर आप हमें बता सकें सर, ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके लिए स्टेक होल्डर्स क्या ऐसा कर सकते हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए? हाँ बिल्कुल वानी जी, देखिए सबसे पहली बात तो समझनी होगी कि देखो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में भी एनसीआरबी के डेटा यदि आप देखें 2016 का, तो पूरे जितनी भी ट्रैफिकिंग का जो फिगर्स निकल कर आए हैं, 60% ट्रैफिकिंग जिनका हुआ है वो 18 साल से कम है। मतलब देखिए 18 साल से कम मतलब बच्चे जो हैं उनका ट्रैफिकिंग काफी मात्रा में हो रहा है और ये ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है फिगर। तो एक बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है जिस पर सभी को एक ध्यान देने की जरूरत है और इस पर हमें आपने चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जब हम लोग बातचीत करते हैं इसमें 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि जो आईपीसी का सेक्शन हमारा 370 कहता है कि जो ट्रैफिकिंग के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं करते हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करवाते हैं और ये भी करते हैं। लेकिन जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स के अलावा में 2-3 एक जरूरी यूनिट्स हैं जिनके बारे में हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए एएचटीयू का गठन किया गया है, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, जो सेल पूरा बना हुआ है। एएचटीयू का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके की सारी चीजों को अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक करे, टाइमली इसको इन्फॉर्म करे और जो भी इस तरीके की कोई आते हैं रिपोर्ट उनको प्राथमिकता के साथ में वो डील आउट करे।
तो जो भी व्यूअर्स हैं, यदि उनको लगता है कि यदि उनके आसपास ऐसी कोई घटना है तो वो इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास एक हेल्पलाइन का नंबर भी है, जो भी अगर आप इसके लिए अगर 1098 पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कोई ट्रैफिकर्स हैं, यहाँ पर ऐसी कोई संभावना है कि जैसे भी मैं सदर्न राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में तो अभी बड़ी संख्या में इस कोरोना के चलते हुए बच्चे भी घरों को लौटे थे। ये बच्चे जो घरों को भी लौटे हैं, इनकी लाइवलीहुड की बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, और प्रॉब्लम को देखते हुए वहां से ऐसे एक गिरोह एक्टिव हो गया है, जो ट्रैफिकर्स का कह सकते हैं, या वहां के ऐसे कोई मैट हैं, वो लोग अब इन बच्चों को चैनलाइज कर रहे हैं, इन बच्चों को लिस्ट आउट कर रहे हैं, और इन बच्चों को कहीं बाहर भेजने की उनकी तैयारी में लगी हुई थी। ऐसे कुछ ट्रैफिकर्स को हम लोगों ने पकड़ा भी है, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस कोरोना के चलते हुए जहाँ स्थितियां गंभीर रहती है, लोग कुछ इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये तो उनको इसके बारे में पता होना चाहिए, वो AHQ की जानकारी रखें, 1098 की इंफॉर्मेशन रखें, 100 आपका 100 नंबर तो है, आप उस पर फोन करके भी सूचना दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। अन्वेषा मैम, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया हमें AHTU, दैट इज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो है पुलिस में, अगर आप इसे थोड़ा और इलैबोरेट करके हमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके बारे में थोड़ा बता पाना। जी मैम, एक सेकंड, आप म्यूट पे हैं। जी जी। Yeah. Human trafficking, I'll start with Article 21(1) of the Constitution, Clause 1. It specifically prohibits trafficking in human beings, including children. Okay? It has been referred to as the worst form of child labor by ILO Convention number 182. जी। तो जो लीगल फ्रेमवर्क के बारे में आप कह रहे हैं, लाइक उसमें काफी सारे लॉज हैं जो ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इनेक्ट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइल्ड ट्रैफिकिंग is a crime under the international law. Okay. Then the Immoral Traffic Prevention Act 1956 was enacted to prevent or stop the trafficking of children for commercial sexual exploitation. जी। Now, child trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of a child for the purpose of exploitation. ये है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का पर्पस, व्हाई द ट्रैफिकिंग इज डन। बेसिकली ट्रैफिकिंग जब कोई करता है तो बच्चों को इसीलिए किया जाता है सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट देम सेक्सुअली। और कुछ जगह पे देखा गया है बच्चों को आपने मेड बना दिया है, कहीं और ले जाके उनके घर से दूर कहीं और ले जाके उनको मेड बना दिया है, या उनको एक हैजार्डस किसी फैक्ट्री में उनको लगा दिया है, विच इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24 बच्चों के लिए। बट दिस इज कहीं कहीं बेगर बना दिया है उसको, बच्चे को, वो भीख मांग रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच ट्रैफिकिंग जिस तरीके से बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। नाउ अगर जैसे आपने स्टेक होल्डर्स की बात अभी सर भी कर रहे थे, तो स्टेक होल्डर्स के बारे में आई जस्ट वांट टू से कि स्टेक होल्डर्स की जो कुछ ड्यूटीज हैं, व्हाट आई फील इज दे शुड फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस पॉवर्टी, दे शुड endeavor to reduce the poverty in our country. Then they should endeavor to make child trafficking unprofitable, क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा उनको मिलता है। जो अगर बच्चों को वो ट्रैफिकिंग करते हैं बच्चों की, then they get a good handsome amount of money, those people who are perpetrators who do that. Then close exploitative workplaces, जिससे जहां काम करने से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन होता हो, उन वर्क प्लेसेस को बंद कर देना चाहिए। दिस इज ऑल फॉर द स्टेक होल्डर्स टू डू। डिसमेंटलिंग ट्रैफिकिंग ऑपरेशंस, इम्प्रूविंग बॉर्डर पॉलिसिंग एंड रिड्यूसिंग करप्शन, दीज आर सम ऑफ द duties which I would say they should these are the guidelines that they should follow, the stakeholders. थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या करना चाहिए ट्रैफिकिंग को कम करने के लिए। एंड काफी योजनाएं एंड काफी प्रयास किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस इशू पे। मुथु सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि जब हम ट्रैफिकिंग के बारे में बात करते हैं तो जो आर्टिकल 23 है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, and exploitation includes sexual exploitation. जो बॉयज लॉकर रूम जो इंसिडेंट था,
जहाँ पे तो ये पता चला कि बच्चे वनरेबल हैं फिजिकल वर्ल्ड में ही नहीं, बट कि वर्चुअल वर्ल्ड में भी वो बहुत वनरेबल हैं टू सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड जस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन जनरल। तो सर इसमें हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड जो हाई कोर्ट्स हैं उनका काफी क्या कहते हैं, काफी रोल रहा है, काफी उन्होंने इंटरवीन किया है टू स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन। अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अस व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ द कोर्ट्स and the intervention by the judiciary to ensure the protection and the strengthening of that protection for children with regards to exploitation on the in the virtual worlds. So, firstly, let me begin with what Anvesha was talking about regarding right against exploitation and how it is. So, one of the important things that I want to say is regarding POXO Act. Now, POXO Act 2012 is also one act that can be used against exploitation. I think I'll just discuss a few things about POXO Act. First thing is that unlike the Indian Penal Code and other penal laws, this act is a complete code in itself. Firstly, it recognizes a sexual offense against a child irrespective of gender, that is a male or female. And secondly, under IPC, any offenses relating to body, the complaint has to be given by the victim. Now, in POXO Act, it is not necessary that the victim has to give a complaint. Anybody on behalf of the victim can go and give a complaint. So, and this has been expanded by the courts, where the court now feels that look, these are things that are happening around the society. So, to protect the interest of the child, what they did was they banned publishing of the name of the child in a judgment or even in the FIR. So normally, if you see, the victim's name is not published or the name of the victim is not allowed to be taken out openly. So coming back to the incident as to what you mentioned about boys locker room or something, and unfortunately, legally speaking, we have only the Information and Technology Act of 2000, which has been amended a few times. Apart from Information and Technology Act, we don't have any other act which recognizes these form of offenses. The problem is that most of them online, most of them who are using the internet and who are into the cyber world, do not know or not aware of what are the offenses and what are the liabilities that they can incur when they do any act or something. Now, Supreme Court, insofar as these issues are concerned, has only given a few judgments, or it's very limited. The Supreme Court only banned child pornography, and it has directed the government to remove all those content online. That is one. But these kind of things are totally new, because at present we don't even have a data protection law. We are yet to evolve as a legal as a legal regime. We do not have laws which effectively tackle with these kind of things. I think on a different level, that is apart from being legal, there has to be much of education and sensitization that has to happen in the schools. So it is the duty and the responsibility, as personally I feel, that the schools have to educate regarding the basics while using the cyberspace. So as to what liabilities they can incur, because if I go online and abuse someone, I can be booked for for, for abuse, and I can be charged under IT Act and also under IPC. So these are the things that has to be inculcated. These are the things that have to be taught to the children in the schools itself. Otherwise, what will happen? People think that it is normal and it is okay to do all such things. Yes, sir. Sir, thank you so much, sir, because you've touched on a lot of laws and they are very relevant, and it's very important कि इन laws के बारे में awareness generate की जाए society में. चेतना ने पहले एक webinar किया हुआ है on cyber security for children, जहाँ पे इंदु अर्नेजा मैम and advocate नीरज अरोड़ा सर ने बहुत अच्छे से क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से साइबर सिक्योरिटी जो सेफ्टी है, साइबर सेफ्टी के बारे में एक्सप्लेन किया है. आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप उस वेबिनार को जाके देख सकते हैं.
एंड सर, ये जो पॉक्सो के बारे में आपने कहा, पॉक्सो एक्ट जो है विच इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, इसके बारे में भी अवेयरनेस जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को इसके बारे में पता चले एंड अवेयर किया जाए, क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड में जो थ्रेट है या रिस्क है एक्सप्लॉयटेशन का, वो बढ़ जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हु दैट परपेट्रेटर इज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे अपनी तरफ से सेफ रहें। तो इसमें माँ बाप का और पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे अन्वेषा मैम ने और पहले बताया है, राइट अगेंस्ट लेबर, चाइल्ड लेबर, ये आर्टिकल 24 के अंदर क्या कहते हैं इंक्लूड किया गया है। एंड शैलेंद्र सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमें बता सकें कि जो ये चाइल्ड लेबर है इसके लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्योंकि हमें पता है जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसके अंदर चाइल्ड लेबर भी इंक्लूड होता है, बिकॉज एक ओवरलैपिंग होता है ट्रैफिकिंग एंड लेबर लॉस का। तो क्या मेजर्स ऐसे लिए जाने चाहिए जिसकी वजह से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके जो एग्जिस्टिंग लॉज है, एंड चाइल्ड लेबर की फाइट को आगे बढ़ाया जा सके? सर एक सेकंड, आप शायद से जी सर आप कह रहे थे। हाँ जी, चाइल्ड लेबर पे डिस्कशन से पहले जस्ट मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था, जो भी मैडम कह रहे थे ट्रैफिकिंग की बात, उसमें मुझे लगा एक जरूरी बात और हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। देखिए, ट्रैफिकिंग के अंदर अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2013 आई थी, मैं बोल रहा हूँ, 2013 का ही एक उनका निर्णय था। उसके बाद वर्ष 2016 में हमारे WCD ने पूरा डिटेल एक SOP जारी किया। उस डिटेल SOP में ये बात बताया गया कि ट्रैफिकिंग में जो बच्चे मिसिंग, जो चिल्ड्रन हैं, वो भी कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं। उस SOP के आने के बाद देखिए आप, उसमें ये एक उसमें मेंशन किया हुआ है साफ साफ कि जिन भी बच्चों का आपका मिसिंग बच्चों की रिपोर्ट आती है, उन बच्चों के साथ भी संबंधित पुलिस स्टेशन ट्रैफिकिंग की संभावना को दर्ज करें। और अगर 3 से 4 महीने में मिसिंग बच्चे को यदि वो नहीं ढूंढ पाते हैं तो ये पूरा मैटर AHQ को रेफर किया जाएगा। तो देखिए, बहुत बड़ी संभावना है कि कई बार लोग समझते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो पॉवर्टी का बात मैडम भी कर रहे थे कि भाई ऐसे लोग हैं, लेकिन आप देखिए, जैसे राजस्थान की बात करूं तो वर्ष 2016 में यहाँ पर करीब 1900 बच्चे लापता हुए। वर्ष 2017 में वो फिगर बढ़ के 2400 हो गया, और वर्ष 2018 में ये 2900 के लगभग फिगर चला गया जो बच्चे लापता हुए हैं। ये बच्चे तो वो हैं जिन बच्चों का पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ है। जो ट्राइबल डोमिनेटेड रीजन के जो बच्चे हैं उनका तो कई बार रिपोर्ट्स भी नहीं आ पाते। तो एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी होगी कि अगर यदि हमारे आसपास का कोई बच्चा यदि गुमशुदा है तो उसको सीरियसली लेते हुए, ट्रैफिकिंग की संभावना को समझते हुए, जो SOP भी हमारा कहता है, हमें पुलिस स्टेशन में उसका एक रिपोर्ट जरूर देना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमीशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपने चाइल्ड लेबर की आप बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर में अक्सर लोग ये बात करते हैं, कई सारे हमारे वेबिनार्स में भी, अभी हाल इस कोरोना में जब वेबिनार्स हुए तो भी कई सारे व्यूअर्स के प्रश्न ये निकल कर आए, चाइल्ड लेबर के इतने रेस्क्यूज हो रहे हैं फिर भी आज भी चाइल्ड लेबर क्यों है? चाइल्ड लेबर आज एक शॉप से रेस्क्यू हो जाता है, कल वो 1 महीने बाद फिर से दूसरे शॉप पर जाएगा। तो इसका जो कारण है वही कारण है जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, कि जो हमारे जो एक्ट जो कहता है, जो पॉलिसीज में जो लिखा है, यदि उसका कंप्लीट अगर फॉलो अप हो पाता है तो डेफिनेटली चाइल्ड लेबर की समस्या का समाधान संभव है। लेकिन वो आज की तारीख में होता नहीं। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं या फिर एक्ट और पॉलिसीज की बात करूं तो आप देखेंगे पाएंगे कि देखिए, इसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पार्ट पर काम करने की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर को उस लेवल पर किया जाए तो हमें सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब जहां से वो बच्चा गया है, उसकी फैमिली, उस बच्चे को जो प्रॉपर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, एज पर एक्ट जो उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, वो उसको सुनिश्चित करवाए जाए। और डेस्टिनेशन मतलब जहां पर वो बच्चा गया है, उस नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा काम हो सकता है। अब जिन सोर्स पार्ट, मतलब बच्चों के अगर लेवल पर मैं बात करूं तो देखिए, आप MC मेहता बनाम भारत सरकार का जो आपका पूरा जजमेंट था, उसमें साफ साफ स्पष्ट किया गया कि जब भी किसी बच्चे को चाइल्ड लेबर से आप फ्री करवाते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, उस बच्चे को संबंधित नियोक्ता मतलब एम्प्लॉयर के ऊपर 20,000 रुपीज तक का चार्ज लगता है, जो उस बच्चे के आगे मेन स्ट्रीमिंग में, उसके रिहेबिलिटेशन में काम में आएगा। आप देखिए, अगर फिगर्स में अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि अलग अलग अभियानों में अलग अलग जो टारगेट्स मिलते हैं, कहना चाहिए मुझे कि उसमें पुलिस कई बार रेस्क्यूज तो कर लेती है, लेकिन अगर आप उसमें ये अगर प्रश्न पूछे कि जो रेस्क्यू हुआ उसमें कितने नियोक्ताओं के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चालान बुक हुआ, कितने लोगों के खिलाफ मिनिमम वेजेस एक्ट में मामला बुक हुआ, अगर बाउंडेड लेबर का मामला था तो मिनिमम वेजेस के साथ साथ आपने बाउंडेड लेबर का एक्ट इसमें लगाया नहीं लगा। कई बार ये सारे सेक्शंस लगते ही नहीं।
और उसकी वजह से जो नियोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाती, जो बच्चे को जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाते। हम लोगों ने भी रिसेंट कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जो राजस्थान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें मैं खुद उस टीम के साथ में था और हम लोग 2 दिन तक गुजरात के सूरत में रहे और 137 बच्चों को हमने चाइल्ड लेबर से फ्री करवाया। जब उन बच्चों को हम फ्री करके लेकर आए तो आप देखिए हम लोगों ने दोनों पार्ट पर बच्चों को जो जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे, अगर उसमें जो बाउंडेड लेबर बच्चे थे उनका हमने कोशिश किया कि उनको तुरंत बंधुआ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होता है एसडीएम के माध्यम से, वो जैसे ही वो आपका बंधुआ मुक्ति प्रमाण पत्र जारी होता है बच्चे को तुरंत 20,000 रुपीज, और जब वो बच्चा अपने होम डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है तो उसको 2,80,000 रुपीज का बेनिफिट एडिशनल मिल सकता है। ये बेनिफिट कभी मिल ही नहीं पाता बच्चे, हमने इसको इंश्योर करवाया। मिनिमम वेजेस एक्ट में ये देखा जाता है कि वो जो बच्चा वहां पर कितने समय से काम कर रहा था उसको कितना पैसा उसका एम्प्लॉयर दे रहा था और उसको लास्ट जो सैलरी मिली वो कब तक की मिली। हम लोगों ने मिनिमम वेजेस एक्ट का दिखवाते हुए भी 2-3 जो रेस्क्यूज हुए राजस्थान में, उसमें आप देखिए 1.5 से 2 लाख रुपए तक का फाइन जो है, जो पैसा उस एम्प्लॉयर को भरना पड़ा। इन सब प्रैक्टिस की वजह से क्या हुआ, अगर आज भी आप सूरत में यदि पता करेंगे और अगर आप देखेंगे जो हमारे पास मीडिया से और इनसे रिपोर्ट आती है तो बहुत बड़ी संख्या में जो चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व थे उसमें कमी आई। तो ये एम्प्लॉयर के ऊपर ये बहुत जरूरी है कि इन सब में कार्रवाई। अब आता है अपना सेकंड साइड पर कि हम बच्चों को क्या क्या बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो अब बच्चों के लिए देखिए, अब हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में हमारे पास शेल्टर होम्स और चिल्ड्रंस होम का प्रोविजन है। कई बार ये लोग कहते हैं, कॉमन लेमैन की सोच होती है कि सर ये जो बच्चे हैं ये बच्चे काम करके घर पर सपोर्ट करते हैं, अगर ये काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, रहेगा कैसे। तो मैं उन सभी को आपके इस वेबिनार के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ऑर्फन बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, किसी भी SC ST के अलावा किसी भी जनरल कैटेगरी के भी हो, यदि वो बच्चा सर्वाइव करने में उसको इश्यू है तो हमारे शेल्टर होम और चिल्ड्रन होम्स में पूरी फ्री फैसिलिटीज अवेलेबल है पूरे राष्ट्र में। ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, पूरे राजस्थान में हर जगह अवेलेबल है। तो ऐसे जो बच्चे उनको हम लिंक कर सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमारे डिफरेंट स्कीम्स है, जैसे राजस्थान में एक पालनहार स्कीम चल रही है जो वन ऑफ बेस्ट एग्जांपल है पूरे राष्ट्र के लिए, कि जो सिर्फ इन 7 कैटेगरीज के बच्चों को बेनिफिट पहुंचाती है। पर मंथ का एक स्पॉन्सरशिप स्कीम कह सकते हैं, एक उनको एक बेनिफिट मिलता है जिससे बच्चे आगे बढ़ता है। तो अगर ये दोनों साइड्स पे यदि काम होता है कि बच्चे का हम प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करें, सिर्फ रेस्क्यू तक ना रहे, और जो एम्प्लॉयर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इन सारे एक्ट्स में बुक करवाएं, तो निश्चित रूप से चाइल्ड लेबर पर एक अच्छे रिजल्ट सामने लाए जा सकते हैं। जी सर, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि बच्चों को रेस्क्यू करना ही नहीं, लेकिन उन्हें रिहैबिलिटेट करना और उनको रीइंटीग्रेट करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को रेस्क्यू कर लेना, लेकिन अगर उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिले तो फिर वो फिर से उसी साइकिल में चले जाते हैं। एंड इंडिया की जो इंडिया हैज द लार्जेस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा वनरेबल हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेक होल्डर्स, स्पेशली जो कम्युनिटी है, जो एक इंडिविजुअल है, वो ये सारे लॉस के बारे में जानकारी रखे, जिसमें अगर आपको कहीं पता चले तो आप प्लीज रिपोर्ट करिए। क्या कहते हैं, आप पुलिस को बता सकते हैं, आप जो स्टेट कमीशंस हैं चाइल्ड राइट्स उनको क्या कहते हैं कंप्लेंट्स दर्ज करा सकते हैं। आप नेशनल लेवल पे भी जो चाइल्ड राइट कमीशन है उनको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ पे रेस्क्यू और उनके हक जो हैं बच्चों के, उनको वो मिले, ये पूरी कोशिश की जाएगी। जो आज जी सर, इसमें वानी जी मैं एक और बात व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, नेशनल और स्टेट तो है ही है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट का पूरा कमेटी फॉर्म किया हुआ है जो हर डिस्ट्रिक्ट में है। आपके यदि आसपास यदि कोई भी इस तरीके के मामले हैं, अगर आपको लगता है चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, या कोई भी इशू है जिसकी वजह से बच्चा सफर करता है, चाहे वो कॉर्पोरल पनिशमेंट का ही मामला हो, तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में CWC जिसको हम कहते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हमारा बाल कल्याण समिति, वो भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में फॉर्म्ड है और सब जगह इनका गठन और सुनिश्चित हो चुका है। जी सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, थैंक यू सो मच सर। जब हम राइट्स या अधिकार के बारे में बात करते हैं, लॉ में कहा जाता है कि इफ देयर इज नो रेमेडी देयर इज नो राइट। द राइट विल बी मीनिंगलेस अगर उसको रियलाइज करने के लिए, अगर राइट का वायलेशन होता है तो उसको रेमेडी करने के लिए कोई भी तरीका ना हो। तो मुथु सर एंड अन्वेषा मैम, आप दोनों ही ने सुप्रीम कोर्ट में काफी काम किया हुआ है। अन्वेषा मैम, अगर आप हमें बता सकें कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें अगर चाइल्ड राइट वायलेशन होता है तो वो चाइल्ड राइट वायलेशन को रेमेडी करने के लिए वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, एंड अगर आप वो हमें बता सकें मैम।
जी Yeah, thank you. Okay, constitutional remedies जो है वो that are which are specifically meant for children. Okay, those are enshrined under Article 21. Like, see, first of all, in Article 21, which says right to free and compulsory elementary education for children between 6 to 14 years. Okay. नेक्स्ट है आर्टिकल 24 में बताया गया, जैसे अभी हमारा जो डिस्कशन हो रहा था, अभी सर ने भी बोला कि आर्टिकल 24 ये प्रोहिबिट करता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है कि कोई हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में वो ना शामिल हो, ना काम करे वहां up till the age of 14 years. Then Article 39E ये कहता है right to be protected from being abused and forced by economic necessity to enter occupations unsuited to their age. कई बारी बच्चे जो गरीब घर से होते हैं, they due to monetary reasons उनको काम के लिए या तो उनके पेरेंट्स भेज देते हैं या फिर वो खुद ही काम की तलाश में निकल जाते हैं. तो यही रीजन है कि आर्टिकल 39E ने ये बोला है कि उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए कि अभी जो उनकी एज है, उनके एज के मुताबिक अगर वो काम करे, दैट्स ओके. बट एंड आर्टिकल 21A भी इसलिए डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज सो दैट जो मिनिमम एजुकेशन है, अ चाइल्ड शुड गेट इट बिटवीन 6 to 14 ईयर्स जो बच्चे. तो सबसे पहले तो काम का तो बच्चे ना ही सोचे. माय एडवाइस विल बी दैट कि काम के बारे में ना सोचो, पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे, वो एलिमेंट्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है उनके लिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को राइट देती है. देन अगर हम बात करें, नेक्स्ट इज 39F. 39E के बाद 39F भी डाला गया है, which provides right to equal opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and guaranteed protection of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment. उनके चाइल्डहुड को नष्ट ना होने दें, उनके चाइल्डहुड को, बचपन को बरकरार रखें, उनका बचपन एक्सप्लॉइट ना हो. Then Article 45 provides right to early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years. Now, besides, ये तो हो गए स्पेसिफिकली चिल्ड्रन की बातें. Besides that, children भी included हैं in the rights which are meant for adults also in our constitution. That is, अगर right to equality under Article 14, Article 15 right against discrimination, Article 21 right to life and personal liberty, etc. जी जी, थैंक यू सो मच मैम. मुथु सर, अगर आप हमें बता सकें कि ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं, स्पेसिफिकली द फंडामेंटल राइट्स, ये क्या हैं, एंड इसमें कोर्ट्स का क्या रोल रहा है कि टू इंश्योर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बच्चों को मिले और वो रेमेडीज अप्लाई की जाए और बच्चों को प्रोटेक्शन और उनके अधिकार मिले, ये अगर आप हमें बता सकते हैं. See, I think Anvesha has discussed about all the provisions for children. One of the things that I just want to add on to what she has said is she has said that right to health and right to nutrition and everything. So in the year 2013, there was this Food Security Act that was passed by the Parliament. Now, Section 5 and Section 6 of the Act specifically provide that the child has to be nourished, that is, food has to be given to child. There is in the act there is a schedule which mentions as to how much of calories that a child requires and what is the minimum amount of calories that the child should require. So these are the things that are there by virtue of statute itself, and it is the responsibility of the local Anganwadi to ensure that a child is nourished so that no child is malnourished. One. Now we talked about Article 32. Article 32 is about a writ remedy to enforce fundamental rights in the Supreme Court. Apart from that, you can enforce your fundamental rights in the High Court also under Article 226 of the Constitution. Now, as she is rightly pointed out, every provision of the Constitution is available to child. The Constitution does not make a difference between a child and an adult. As I said earlier, the child who is born in India automatically gets the right of citizenship. So that right is there available under the Constitution. Once the child is recognized as a citizen in the Constitution of India,
all other legal remedies, as she has rightly discussed, Article 23, Article 21, Article 45, Article 14, Article 15. Article 15 again provides for now that we have the right against discrimination, and also reservation. Now we even have reservation for economically backward section. So even the children who belong to socially marginalized class have the right to education and also the right to get into good and esteemed colleges. The backward children belonging to the backward communities, by virtue of the reservation, have the right to get into good colleges and good educational institutions. That is one guarantee that the Constitution has already given. Now, the duty of the court, because somebody approaches the court if there is a right that has been infringed or there is a right that has not been taken away. To recognize such rights which are available under the Constitution, you can approach the court. Now, for example, as Sir was rightly discussing about RTE Act, Right to Education Act. Right to Education Act provides for 25% reservation to children who study in the neighborhood locality. So a private school has to reserve 25% of its seats to economically poor students from that locality. Now, what happens if a school denies such a right? As a parent or as a child, you can approach the court and ask the court, look, I have a right under the Constitution, I have a right under law. There is a law enacted in my favor. You please recognize my right and allot me a seat in the school. And this right has been availed by several people, and they've got admission into very good schools by virtue of this legislation. So the courts are also proactive. And I just want to also add another thing. The recognition of children's rights have been happening, it's just a recent happening that it has been happening for nearly 2 decades from now. Earlier, the child rights were not taken seriously. Now there is a growing importance and the growing awareness regarding child rights. I think more and more the jurisprudence might evolve regarding the child rights. That is what is my opinion. जी सर, इट्स वेरी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि कोर्ट ने काफी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है चाइल्ड राइट्स को इंश्योर करने के लिए. एंड आई थिंक जब तक सोसाइटी में राइट्स की अवेयरनेस नहीं होगी तब तक आप वायलेशंस नहीं समझ पाएंगे कि आपके राइट वायलेट हो रहे हैं. एंड अगर आपको आपके अधिकारों की अवेयरनेस है तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इनको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है, और अगर आपका वायलेशन हो रहा है तो आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं अपने राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए. नाउ अब हम अपने हमने राइट्स के बारे में बात की, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात की, हम अपने वेबिनार के एंड में आ रहे हैं. तो शैलेंद्र सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज दे सकें चाइल्ड राइट्स के बारे में, विल बी वेरी ग्रेटफुल. देखिए, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात कर रहे थे, यहाँ सबसे पहले देखो पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा था कि इन सब के अलावा भी जो यूएनसीआरसी, हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा हुई थी, उसमें 1992 में भारत ने भी हस्ताक्षर किए. उन 54 जो अनुच्छेद हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग मेजर 4 पार्ट्स में समझते हैं या बांट सकते हैं. जो हमारा सर्वाइवल राइट है, जीने का अधिकार है, डेवलपमेंट राइट, विकास का अधिकार है, तीसरा हमारा उसका प्रोटेक्शन राइट, संरक्षण का अधिकार है, और फोर्थ उसका पार्टिसिपेशन राइट. तो ये भी उस यूएनसीआरसी के जो हमने उसके प्रोटोकॉल्स को, उसके जो उसपे उनकी सारी शर्तों को या उस अधिवेशन पे जहां हमने हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी बच्चों के लिए हमारी सरकार का, इस भारत का उन्हें देना ये उनका अधिकार है. तो इन पर भी हम लोग इसी के आसपास होके कमीशन भी कई बार काम करता है. चाहे सर्वाइवल राइट की बात करें तो आज अदर कंट्रीज में उन्हें पता होता है उनके घर में बेबी जो आ रही है वो लड़का है या लड़की है. हमारे यहाँ पर पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बच्चियों की पहले इस तरीके से मार दिया जाता था. तो इन सारी जो राइट्स को फुलफिल करने के लिए समय समय पर कई सारे कानून और योजनाएं बन रहे हैं. बहुत ही अग्रेसिव मोड में पूरी कंट्री काम कर रही है. लेकिन जब तक सभी लोग साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, सारे कॉमन लेमन से लेकर तो सारे स्टेक होल्डर साथ में नहीं आएंगे, तब तक एक चाइल्ड फ्रेंडली स्टेट, चाइल्ड फ्रेंडली कंट्री का जो एक सपना हम लोगों ने देखा है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा. तो मैं सबसे पहले व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग भी इसके प्रति सजगता को रखें. और मैं अक्सर कहता हूं जब कहीं हमारे कोई सेशन या कुछ इस तरह की बातचीत होती है कि लगभग किसी भी धर्म या संप्रदाय की हम बात करें, लगभग सभी ने इन्हें ईश्वर का दर्जा दिया है. हम लोग कहते हैं कई बार बच्चे ईश्वर का रूप भी होते हैं, ये लगभग सभी का स्टेटमेंट होता है.
लेकिन आज भी मुझे ये ईश्वर कई बार सड़कों पर कचरा बीनते, होटलों पर पी हुई आपकी चाय का कप उठाते हुए, कहीं पर काम करते हुए, कहीं बाउंडेड लेबर में अपने बचपन की आहुति देते हुए दिखता है। तो जब तक आप सभी लोग साथ में नहीं जुड़ेंगे, एक कॉमन लेमैन इसके लिए आवाज नहीं उठाएगा, तब तक ये सारे राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे एक्ट और पॉलिसी सही मायनों में उतने कारगर साबित नहीं होंगे जितने हो सकते हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स से मेरी तरफ से तो यही कहूंगा, कमीशन की ओर से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने आसपास अपने घरों के बच्चों के लिए, जो पॉक्सो की बात अभी हमारे मथु सर कर रहे थे, वास्तव में पॉक्सो को लेकर जब कई बार हम सेशंस करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एक अच्छे घरों के बच्चे हैं जो अब वेल सेटल हो चुके, कोई एमएनसी में है, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, वो बच्चे बताते हैं कि हम जब उस एज में थे 5 साल 6 साल में, तब हमारे साथ भी इसी तरीके की घटनाएं हो चुकी, हमारे अंकल के थ्रू, हमारे एक रिलेटिव के थ्रू, वो बच्चे कभी बोल ही नहीं पाए। तो बच्चे कई बार अपनी बात नहीं रख पाते हैं, चाहे वो आपके घरों के बच्चे क्यों ना हो। तो हम कितना टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कितनी चर्चा हम बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार चाइल्ड प्रोटेक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबल सेक्शंस तक ही छोड़ देते हैं कि स्लम्स की स्थितियां खराब हैं, गांवों की स्थितियां खराब हैं, लेकिन नहीं, पॉक्सो की अगर बात की जाए, चाहे हम वल्नरेबल सिचुएशंस की बात करें, हर 5 में से एक बच्चा कहीं ना कहीं यौन हिंसा का, शारीरिक हिंसा का, मानसिक हिंसा का शिकार है। तो बच्चे सुरक्षित उतने नहीं है जितना हम कई बार सोचते हैं। हम सभी को साथ मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ अच्छे कर पाएंगे। एक बार पुनः आपको, आपकी पूरी टीम को और चेतना ऑर्गेनाइजेशन को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस विषय पर मुझे बुलाया और साथ में जोड़ा। थैंक यू सो मच शैलेंद्र सर, मुथु सर एंड अन्वेषा मैम। आज का सेशन बहुत ही इंसाइटफुल था, बहुत नॉलेजेबल भी था। आई होप हमारी ऑडियंस को चाइल्ड राइट्स, जो हमारे संविधान के अंदर जो अधिकार हैं बच्चों के, उनके बारे में काफी जानकारी मिली है। हमारे पास क्योंकि टाइम कम है तो मैं कमेंट्स रीड आउट नहीं कर पाऊंगी ना, जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं वो उसका हमारे पास समय नहीं है। I would like to present the vote of thanks. Firstly, I would like to thank Mrs. Jyoti Mujumdar, who's the president of Chetna, and Mrs. Pragya Parande, who's the founder of Chetna. उनके गाइडेंस एंड सपोर्ट के साथ हम जो हमारा ये इनिशिएटिव है चाइल्ड राइट्स पे, हम ये कर पा रहे हैं। I'll also like to thank our speakers. आपने अपने बिजी शेड्यूल से संडे को टाइम निकाल के हमारे साथ आप जुड़े हैं हमारे व्यूअर्स को एजुकेट करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई लाइक टू थैंक द व्यूअर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आई होप आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहें। अगर आपको कोई फीडबैक या सजेशंस देना है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक हम नेक्स्ट संडे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय। थैंक यू। नमस्ते।